अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी देखने वालों को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और 5 वक्त की नमाज सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत, कसरत से दुरूद पाक, इस्तगफार, बेहतरीन ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, ये है तरीक़ाकार। दोस्तों, आज हम आपको जो इमसाक के शौकीन हैं, लंबी टाइमिंग के शौकीन हैं और बारहा इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुस्खा कारीगर साबित नहीं हुआ, इधर उधर बड़ा इलाज करवाया, बड़ा भटके, लेकिन मकसद हासिल नहीं हुआ। आज वो यूं समझे जैसे उनका मकसद हासिल हो गया, बेहतरीन इलाज उनको मिल गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इलाज आपका हो जाएगा। यकीन आपने पुख्ता पक्का रखना है। यहाँ मैं लंबी टाइमिंग के हवाले से आपको ऐसी चीज़ें बताए देता हूँ जिससे आप दूर रह के बेहतरीन मर्दाना ताकत और ना ख़त्म होने वाली मर्दाना ताकत हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह? जो नौजवान हैं वो अभी से खुद को उन तौर तरीकों पर ढालना शुरू कर दें जिनमें सही मायनों में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है और ज़िंदगी बसर करने का मकसद हासिल होता है। वो ये हैं, आप अपने दिमाग को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, 3 चीज़ें बड़ा ज़रूरी हैं ये। अपनी आंखों को आप बंद कर लें, बुराई ना देखें। कम उम्र में 13 14 12 13 14 15 25 तक, 25 साल की उम्र तक आप हर किस्म की बुराई से आप अपनी आंखों को बंद कर लें, बुराई की तरफ ना देखें। आप अपने कानों को बंद कर लें, किसी किस्म की फहाशी, वाहियात, सेक्स, कोई भी इस तरह का है, वो आवाज़ें अपने कानों में ना जाने दें। अपने दिमाग को बिल्कुल साफ रखें। अपनी ज़ुबान को आप बंद कर लें, किसी किस्म की कोई बुरी बात या मुंह से गाली गलोच ये ना आपके मुंह से हो। बस ये 3 काम आप कर लें, आप यकीन जानिए, पक्का गारंटेड आपको मैं कहता हूं मैं, आप 40 साल की उम्र के बाद भी मर्दाना कमजोरी के मतलाशी नहीं होंगे। आपको इलाज मुआवजा कराने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी। 40 साल की उम्र के बाद जो उसकी 41 42 43 साल जिंदगी जो शुरू होती है, अल्लाह आलमुल गैब है, अल्लाह जानता है उसकी कितनी जिंदगी है, लेकिन यकीन जानिए वो
اس میں ویسی ہی طاقت محسوس کرے گا جیسی وہ 40 سالہ زندگی میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خود کو برائی سے بچائے رکھا، خود کو بری محفل سے بچائے رکھا، خود کو ہر اس گندے فعل سے بچائے رکھا جو گھڑی پل کا اس کو مزہ دیتے اور بعد میں ساری زندگی اس کو شرمندگی دیتے۔ ان چیزوں کو اس نے اپنی طرف نہیں آنے دیا، ان چیزوں کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ وہ 40 سال کی عمر تک ماں کے دودھ کی طاقت اس کے اندر، اور جو 12 15 20 25 سال کی عمر اس نے گزاری، زندگی گزاری، اس میں جو اس نے پرہیز کیا، اس میں جو اس نے اچھی غذا کھائی، خود کو صحیح رکھا، صحیح سمت میں ڈالے رکھا، وہی اس کا طریقہ کار، اس کی غذا اس کے کام آئی 40 سال کی عمر کے بعد۔ یہ ہوتا ہے فائدہ۔ آپ یقین جانیے، میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں جن کی عمر 32 35 38 سال ہے، لیکن وہ لگتے اس طرح ہیں جیسے وہ 45 سال کے ہیں، 46 48 سال کے ہیں۔ چہرہ مرجھایا، چہرے پہ جرییں اور بال سفید، پریشانی اور طاقت نہ ہونے کے برابر۔ اس کی وجہ یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو اپنی زندگی کو 25 سال کی عمر تک محفوظ کر لیتا ہے، 12 سال سے شروع ہو کے 13 14 سال سے شروع ہو کے، یقین جانیے اس نے بہت بڑا کام کر دکھایا اور بڑے حوصلے والے اس نے کام کیے۔ اتنا اس کو فائدہ ملتا ہے۔ پھر اگلا فائدہ اس کو کیا ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی اولاد حوصلے والی، حیا والی اور ذہین خوبصورت پیدا ہوتی ہے اس کے، یقین جانیے۔ یہ پھر اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے، کیونکہ اس نے خود کو بے حیائی سے بچائے رکھا، برائی فحاشی سے بچائے رکھا، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو ہر وہ غلط محفل سے بچائے رکھا جس کا اس کو کوئی کچھ حاصل نہ تھا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، زندگی بڑی اللہ کی انمول اور اتنی انمول ہے کہ اس انمول زندگی سے بڑھ کر کوئی بھی تحفہ نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو، اپنی طاقت کو جو آپ کے اندر ہے، اس کو گھڑی پل کے لذت کے لیے، اور وہ بھی لذت ایسی کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ پچھتائیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے، اس کو کسی اندھے کنویں میں جا کے پھینک دیں، اس طرح کی لذت کو، اس طرح کی خواہش کو، تاکہ دوبارہ وہاں سے نکل ہی نہ سکے۔ وہ اپنے اندر اتنا بڑا آپ حوصلہ پیدا کریں، یقین جانیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہر اس برائی سے دور چلے جائیں اور اچھائی کے آپ اتنا قریب آ جائیں کہ وہ لاکھ آپ سے دور ہونے کے دور ہی نہ ہو سکے۔ تو پھر آپ ایک اچھی صحت مند زندگی 40 سال کی عمر کے بعد بھی گزاریں گے۔ آپ لڑکھڑائیں گے نہیں،
आप शर्मिंदा ताबीर नहीं बनेंगे, और आपको दौरान मुबाशरत अपनी जोजा के आगे, शरीक हयात के आगे, अपने ज़िंदगी के सफ़र जो आपने हम सफ़र जो चुना है अपने ज़िंदगी का सफ़र के लिए, हम सफ़र, उसके आगे आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके दिलो दिमाग में भी आपके लिए इज्जत, एहतराम और प्यार होगा बहुत। ये मिलता है इनाम बुराई से, फहाशी से और गंदगी से बचपने का। फिर अल्लाह पाक उसको औरत भी वफादार देता है, हयादार देता है। ये मामूली इनाम नहीं है अल्लाह के बंदो, ये बहुत बड़ा इनाम है। बेहयाई से दूर चले जाओ जितना जा सकते हो। यकीन जानिए, मैंने ऐसे ऐसे भी केस देखे हैं जो अपने नफ्स के ऐसे गुलाम बने हैं कि उनको पता ही नहीं है औरत है कि बच्चा है कि मर्द है। वो इतनी अपनी हवस के मारे हैं कि वो कर गुजरते हैं। फिर उनके अज़ो तनासल में बीमारी पैदा होती है, फिर वो इलाज के लिए आते हैं। पता तो चल जाता है, हकीम तबीब को पता चल जाता है कि इसने अपने नफ्स के साथ क्या जुल्म किया है। ये याद रखें ये बात। हकीम तबीब के आगे ये अल्लाह ताला ने उसको अनायत दी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि सर से लेके पांव तक उसको वो बरहना नजर आता है। उसके सारा उसको हकीम तबीब उसको देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, खामोश खुद ही रहता है वो। और उसको खामोश रहना भी चाहिए, इसी में भला होता है। हिकमत, हकीम तबीब एक ऐसा शोबा है जो कई हजारा हाँ मरीजों के राज अपने अंदर छुपाए रखता है, और उसको रखने भी पड़ते हैं, रखने भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला होता है। कोई अपनी इलाज की गरज की खातिर गलती तो कर बैठा इंसान, गलती तो हो गई, लेकिन वो अपना सारा राज उसके सामने हकीम के आगे फाश कर देता है कि मैंने यूं यूं अपने पे जुल्म किया है, मुझे अब एहसास हो गया है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे और मैं अपनी बीमारियों का, अपनी कोताहियों का, कमज़ोरियों का अजाला कर दूं। अल्लाह के यहाँ वो भी बड़ा पसंद है अल्लाह को। अल्लाह ताला बड़ा राज़ी होता है जो जवानी में इबादत करता है, जवानी में अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता है, आहज़ारी करके, गड़गड़ा गड़गा के, रो के। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत, कसरत से दुरूद पाक इस्तग़फ़ार करने की हिम्मत और तौफ़ीक दे। दोस्तों, आज हम आपको जो गलत कार्य कर बैठते हैं उसके लिए इलाज जो बताने जा रहे हैं, बड़ा आसान सा इलाज है। बिला वजह, बिला इरादा मनी का खारज हो जाना, जरियान, अंजाल, इतलाम, मुमसिक जैसी बीमारी हैं उसको घेरे हुए हैं, उसकी गलत कार्यों की वजह से, उसकी गलत हरकत की वजह से। बड़ा आसान सा इलाज है, तो उसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह के फजल व करम से उसको बड़ा फ़ायदा होगा। अश्वगंध लंगोरी लेनी है अच्छी वाली,
एक स्टांक लेनी है, माजू सब्ज लेने हैं, छोटे होने चाहिए, ज़्यादा ना बड़े होने चाहिए, दरमियाने हों, और उनमें सुराख नहीं होना चाहिए, खासकर सब्ज हों और सुराख ना हो। दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप इनको अच्छी तरह पीस लें, इतना पीसें कि मैदे की तरह बारीक हो जाए। बस ये आपका नुस्खा तैयार है। सुबह उठ के टेबल स्पून नहीं, गर्म दूध वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपने लेना है झज्जर घड़े का पानी, एक प्याला या एक गिलास वो आप ले लें, एक टेबल स्पून भर के मुंह में डालें, ऊपर से पानी पी जाएं। बस इतना सा काम। आपको 1 घंटे 2 बाद बहुत अच्छी भूख लगी, टिका के भूख लगेगी, फिर आप खाना खाएं, दूध पिएं। आपका तालिब इल्मी का ज़माना है तो पढ़ने जाएं, काम काज करते हैं, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी पे जाएं, लेकिन जहन अच्छा रखें, सोच अच्छी रखें, गंदगी को दूर दूर फेंक दें आप अपने। आपकी भलाई इसी में ही है, ताकि आप मुस्तकबिल में जब आप अपनी शरीका हयात लेके आएँ तो उसके सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बड़ा बेहतरीन इलाज, बड़ा आसान सा इलाज, इसको कीजिए। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे और हर किस्म की बुराई से आपको बचाए रखे।